औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप लोग जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की सलामती में रहे और खैर खैरियत से रहें। आमीन सुम आमीन। तो आज की वीडियो में जो है वो हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश। 2-3 वीडियोस में जो है ना मैं इंग्लिश का ही काम डाल रही हूँ। तो आज जो है वो इंग्लिश का हम करेंगे क्लास 6 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6, पेज नंबर 91 पे है। यूनिट 9 द वॉल्फ चिल्ड्रन, इसका पार्ट 1 है। वैसे तो वॉल्फ चिल्ड्रन आपको चैप्टर के नेम से लगेगा कि वॉल्फ कहते हैं भेड़िए को और चिल्ड्रन कहते हैं बच्चों को, बट ये जो है बड़ी मज़े की एक स्टोरी है। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। अगर किसी ने कोई भी जो है वो चाहता है कि मैं इस स्टोरी को ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो मैं वो एक्सप्लेन आप लोगों को कर दूंगी। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 94 पर है ए कॉम्प्रीहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जी, तो ए है कॉम्प्रीहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक वन ऑफ द मैन लिक्ड हिज लिप्स? आंसर इज वन ऑफ द मैन लिक्ड हिज लिप्स because he was nervous and his lips were dry fright. Question number B is why does the author says that demons lived in the ant hill? Answer is people knew that they were not wolves but did not what they were, so called them demons. कि जो है वो उनको पता नहीं था, वो ये तो जानते थे कि ये भेड़िए नहीं है, लेकिन उनको ये भी लगता नहीं था कि ये इंसान के बच्चे हैं, तो वो उनको इस वजह से डेमन्स कहते थे। बड़े मज़े की स्टोरी है जी, ये बड़ा मज़ा आएगा इसको एक्सप्लेन करने में भी। तो अगर किसी को ये एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मैं जो है वो डेफिनेटली एक वीडियो बना दूँगी उसके लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सी इज़ नाउ राइट डाउन 4 सेंटेंसेस फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज विच टेल यू दैट इज़ इवनिंग। Answer is now in gathering twilight sunset was time for the demons to appearance the forest was bathed in deep red glow from the setting sun. The first of the large fruit beds, the waiting man. डन हो गया जी। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके जी, नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज डी. What mysterious sound might you hear in the woods? D is how do we know that Mr. Ali kept a diary of some sort? Answer is Mr. Ali made note, so we know he kept a diary of some sort. E is how did Mr. Ali know that the children had been living with the wolves for a long time? Answer is Mr. Ali knows the children had been living with the wolf for a long time because both run on all foots. Now F is why did the villagers refuse to help? Answer is the villagers refused to help because they believed that evil spirits, not children, were in the wolf's home. G is why did the hunting party beat the ground in front of them? Answer is the hunting party beat the ground to frighten the wolves out of the lair. H is why did Mr. Ali feel bitter and angry with himself? Answer is Mr. Ali felt bitter, angry with himself because the mother wolf died trying to save her body. If anyone wants to take a screenshot, you can. Now come to another page. That is question number 2. Explain the italicized words and phrases in your own words. A is it was on this that man's attention was focused. इसमें जो attention and was focused है, ये इटालियस जो है वो words हैं, ठीक है। Focused is a word generally used with cameras and take photograph when something is in focus. It is clear and detailed. Now B is the forest was bathed in a deep red glow from the setting sun.
इसमें बात जो है वो कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड है, इटालिसाइज्ड वर्ड है इसमें, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड इन मेटाफोरिक सेंस, वी जनरली बाथ्ड इन वाटर, हियर द होल सीन इज़ फ्लडेड विद लाइट फ्रॉम द सेटिंग सन. It is good word to use in these context as we get a clear picture of what it was like. The man on the platform stiffened. Stiffened कौन सा word है, italicized word है, ठीक है। तो क्या था ये, become apprehensive, show that they were scared, ready, alert and uncomfortable. स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी ने लेना है इस पेज का भी. Okay, so now D is she arched her back and bared her teeth, showed revealed all had teeth by pulling back his lips like animal warming off on enemy. Now come to another question, that is third one. Answer the following questions with reference to context. One quickly signaled them not to shoot. अब इसमें से जो है वो उन्होंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं. ये जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है ये पूरे पैसेज में से आपको दिया जाता है जो आप चैप्टर्स पढ़ते हैं. तो इसमें से इन्होंने 1 लाइन आंसर देने होते हैं हमने क्वेश्चन के. तो आइए देते हैं. दैट इज़ हु मेड द सिग्नल. आंसर इज़ मिस्टर अली. बी इज़ वाई डिड द पर्सन सिग्नल्स एंड टू whom was he making the signal. Answer is 2 men part of a group of 5 who agreed to go with Mr. Ali. Number C is what had occurred just before this. Answer is 2 feral children, demons and some wolves come out of the wolf's lair. And the last one is what did the persons do after he made the signal. Answer is he wrote in his notebook. स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी ने इसका लेना है. अच्छा जी, तो इसकी बाकी जो है वो और भी एक्सरसाइज है. वर्किंग विद वर्ड्स है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेजेस है और लिसनिंग एंड स्पीकिंग है. ठीक है, ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. फिर इस चैप्टर का जो है वो दूसरा पार्ट है द वुल्फ चिल्ड्रन 2, वो भी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. होपफुली आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी. और अगर किसी को कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन कमेंट सेक्शन. मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी. और फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी एक्सरसाइज चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं उनके लिए वो भी रेडी कर दूंगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा. और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे, किसी का मोहताज ना करे अपने सिवा. आमीन सुम आमीन. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.